Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Lasit Government Tool Guru. Today again I will discuss GFR 2017 Procurement of Goods Part 3. It is Rule 163 to 167. In previous video already I have discussed different bid processes like advertised tender inquiry Rule 161 and limited tender inquiry 162. Then other bidding processes I will discuss today. So my friends, please share my video, like my video and comment my video, so that due to your comment I will rectify myself in my subsequent videos. So my friends, please subscribe my channel. So now I am going to discuss Procurement of Goods Part 3 Rule 163 to 167. This part is very interesting one, and many times actually question is coming from this part, so that patiently you can go through the video till the end so that you can get complete information. First of all, it is Rule 163 two bid system. It is simultaneous receipt of separate technical and financial bids. First of all, question is arising: when does a procuring authority adopting two bid system? कब एक्चुअली टू बिड सिस्टम को प्रोक्योरिंग अथॉरिटी फॉलो करता है फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी नहीं, क्यों एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी नहीं, क्यों टू स्टेज बिडिंग नहीं, क्यों रिवर्स ऑक्शन टूल नहीं? सो फॉर व्हाट रीजन the procuring authority adopting two bid system to procure the goods? First of all, you remember in two bid system basically two type of bids are there. One is technical bid, another one financial bid. So basically when the procuring authority want to procure heavy machine tools and equipments, clear, high value plant machinery, when the procuring entity want to procure, then in this case two bid system is adopted. It means bid is invited through two bid system. So for purchasing high value plant machinery etc of a complex and technical nature, right, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है. रूल 163 के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि किस रूल GFR का, which rule of GFR 2017 related to the two bid system, where two type of bids like technical and financial bids are there. Okay, so high value plant machinery etc of a complex and technical nature, two bid system is adopted by the procuring authority. Okay, so bids may be obtained in two parts, right? Bids may be obtained in two parts. बोथ टू पार्ट्स को हम डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट वन टेक्निकल बिड. क्योंकि हेवी मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाएगा तो उसका टेक्निकल डिटेल्स को स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकल डिटेल्स को एवेलुएट करना पड़ेगा, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस को एवेलुएट करना पड़ेगा. सो टू टाइप ऑफ बिड्स. फर्स्ट वन इज द टेक्निकल बिड. टेक्निकल बिड में क्या क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टेक्निकल डिटेल्स अलॉन्ग विथ कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस. आपको ये रिमेंबर करना है, टेक्निकल डिटेल्स along with commercial terms and conditions. Second one, financial bid. Item wise price, indicating item wise price for the items mentioned in the technical bid. टेक्निकल बिड में जो जो आइटम्स है उसका प्राइस शेड्यूल किस में आएगा? फाइनेंशियल बिड में. समझ में आ गया? तो हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी को प्रोक्योर किया जाएगा तो इसमें टेक्निकल डिटेल्स को एवेलुएट करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो वो टेक्निकल डिटेल्स को कहाँ पर स्टडी किया जाएगा? ना टेक्निकल बिड में, ठीक है, एंड कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस. फाइनेंशियल बिड में क्या आएगा? बेसिकली जो भी आइटम्स है टेक्निकल बिड में, जो टेक्निकल आइटम्स है उसका प्राइस शेड्यूल, उसका प्राइसेस फाइनेंशियल बिड में आएगा. तो जब बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा, बोथ बिड को कैसे सबमिट किया जाएगा, टेक्निकल बिड को एंड फाइनेंशियल बिड को कैसे सबमिट किया जाएगा, तो पैकिंग ऑफ बिड्स
थोड़ा पैकिंग के ऊपर हम देखेंगे। तो दोनों का पैकिंग अलग होगा, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड दोनों का जो एनवलप होगा वो अलग होगा, और एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि ये टेक्निकल बिड का डिटेल्स है, एक एनवलप में रहेगा और एक एनवलप में फाइनेंशियल बिड रहेगा। क्योंकि साइमल्टेनियसली टू बिड सिस्टम में आपको याद रखना है, साइमल्टेनियसली बोथ द बिड्स मस्ट बी सबमिटेड बाय द बिडर्स, दोनों को एक ही साथ सबमिट करना है। तो in one envelope technical bid must be there and another envelope financial bid must be there, separate envelopes okay must be there. Clear? The technical bid and financial bid should be sealed by the bidder in separate covers, daily superscribed. उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये envelope के ऊपर okay over the envelope it is clearly mentioned that it is the technical details with commercial terms and conditions and it is financial details another envelope. So हमको क्लियर हो गया, सेपरेट एनवलप में दोनों बीड्स रहेगा, इन सेपरेट एनवलप टू बीड्स आर देयर, राइट। नेक्स्ट वन, बोथ दीज सील्ड कवर्स, सेपरेट एनवलप हो गया, टेक्निकल बीड्स के लिए एक एनवलप हो गया, फाइनेंशियल बीड के लिए और एक एनवलप हो गया, तो एक बिगर एनवलप के अंदर दोनों एनवलप को रखा जाएगा। Okay, both the technical bid envelope and financial bid envelope must be kept okay inside the bigger envelope. तो एक bigger envelope के अंदर दोनों bids को रखा जाएगा, क्योंकि simultaneously दोनों bids को submit करना है, simultaneously both the bids must be submitted, right? Both these sealed covers are to be put in a bigger cover, okay, which should also be sealed and daily superscribed. तो ये पैकिंग था, टेक्निकल बीड के लिए एक एनवलप था, फाइनेंशियल बीड के लिए और एक एनवलप था, दोनों एनवलप को हम एक बिगर एनवलप के अंदर डालेंगे, राइट, ऐसे, और उसको सील करेंगे बिगर एनवलप को, और ऊपर में सुपरस्क्राइब होगा कि ये बिगर एनवलप में टू सेपरेट एनवलप्स आर देयर, वन एनवलप कंटेन टेक्निकल बीड, अनदर एनवलप कंटेन फाइनेंशियल बीड। अभी हम चलेंगे ओपनिंग ऑफ बीड्स एंड एवेल्युएशन। ओके, अभी तो सबमिट हो गया, अभी बीड्स को ओपन किया जाएगा, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। आपको याद रखना है, यहां पर बहुत बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे में भी आएगा कि फर्स्ट कौन सा बीड को ओपन किया जाएगा। फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी, टीईसी, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी कंस्टिट्यूट करेगा। फर्स्ट वो टेक्निकल बीड को ओपन करेंगे, फाइनेंशियल बीड को टच नहीं करेंगे। फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी उसको इवैल्यूएट करेगा। जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, वो सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर नहीं मिलेगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका फाइनेंशियल बिड को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो यहां फर्स्ट रिमेंबर, फर्स्ट स्टेज द टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी मस्ट इवैल्यूएट, फर्स्ट ओपन टेक्निकल बीड एंड इवैल्यूएट इट। Those bidders getting minimum technical score, their bids are accepted and their financial bids can be analyzed, and their financial bids in subsequent time, their financial bids would be evaluated. Those bidders could not get minimum qualifying technical score. Those bidders could not get minimum technical score. Their bids should be rejected, right? ये हो गया। तो टेक्निकल बीड को फर्स्ट ओपन किया जाएगा, उसको टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी उसको एवेल्युएट करेगा। जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, वो सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड स्टेज में उनका फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। द टेक्निकल बीड्स आर टू बी ओपन बाय द परचेजिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, राइट, एंड एवेल्युएटेड बाय ए कमिटी, टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, टीईसी। टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, इट इज टीईसी के द्वारा उसको एवेल्युएट किया जाएगा। उसको मैं डिस्कस किया। चलो सेकंड स्टेज,
अभी ये सेकेंड स्टेज में क्या है, जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर मिल गया, राइट, वो सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो गए। इन सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकल एक्सेप्टेबल ऑफर्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, शुड बी ओपन। उनको डेट टाइम दे दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो गए सेकेंड स्टेज के लिए, और इसी डेट एंड टाइम में आपका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और फाइनली रैंक कर दिया जाएगा, और जिसको फर्स्ट रैंक मिलेगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, उनको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका टेक्निकल बिड्स को इवैल्यूएट कर दिया गया, आप एलिजिबल हो सेकंड स्टेज के लिए, तो इसी डेट एंड टाइम में आप अवेलेबल हो जाइए और आपका सामने में फाइनेंशियल बिड्स ओपन होगा। ओके, और वहां पर रैंक किया जाएगा, जो एलिजिबिलिटी बिडर्स को रैंक किया जाएगा, जिसको रैंक 1 मिलेगा ऑटोमेटिकली उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो डेट एंड टाइम फॉर सेकंड स्टेज, डेट एंड टाइम फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट और concerned department or concerned ministry, and also intimated to the eligible bidders. Specific date and time also given. On the specific date and time, their financial bids should be opened and analyzed. Okay, and then bidders, eligible bidders, they are getting ranks, and which one getting first rank, the award of contract would be given to him, right? So financial bids of only these technically acceptable offers should be opened after intimating them the date and time of opening the financial bid for further evaluation and ranking before awarding the contract. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रैंक कर दिया जाएगा। ओके, रैंक करने के बाद जिसको फर्स्ट रैंक मिलेगा उसको ही अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली दे दिया जाएगा, राइट? तो ये हो गया टू बीड सिस्टम, साइमल्टेनियसली दोनों बीड्स वहां पर सबमिट होगा। और मेन पर्पज क्या है, जब प्रोक्योरिंग एंटिटी प्रोक्योर करेगा हेवी मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, दोज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, राइट। नेक्स्ट को आ जाएंगे रूल 164, अनदर बिडिंग प्रोसेस, इट इज टू स्टेज बिडिंग। टू स्टेज बिडिंग में क्या है, फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल बिड्स को सबमिट किया जाएगा। जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका फाइनेंशियल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा। ये डिफरेंस है टू बिड सिस्टम एंड टू स्टेज बिडिंग। जो रूल 164 है वो टू स्टेज बिडिंग, टू बिड टू स्टेज बिडिंग, ये दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि टू बिड सिस्टम में साइमल्टेनियसली बोथ द बिड्स सबमिटेड बाय द बिडर्स, एक ही साथ दोनों बिड्स को सबमिट किया गया टू बिड सिस्टम में। मगर फर्स्ट टेक्निकल बिड को ओपन किया गया, देन उनका फाइनेंशियल बिड। मगर ये जो टू स्टेज बिडिंग में क्या है, दोनों बिड्स को साइमल्टेनियसली सबमिट नहीं किया जाएगा, फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा। फर्स्ट बिडर्स को इनवाइट किया जाएगा कि आप आपका टेक्निकल बिड्स ओनली सबमिट कीजिए, उनका टेक्निकल बिड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनको बोल दिया जाएगा कि इसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आप आपका फाइनेंशियल बिड को सबमिट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टू स्टेज हो गया, फर्स्ट वो टेक्निकल बिड सबमिट करेंगे, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप फाइनेंशियल बिड सबमिट कीजिए। यहां पर वो टेक्निकल बिड एंड साइमल्टेनियस टेक्निकल बिड एंड बेसिकली फाइनेंशियल बिड बोथ cannot be submitted simultaneously. So it is the difference between two bid and two stage bidding. Ministry or department may procure the subject matter of procurement by the method of two stage bidding if, क्यों टू स्टेज बिडिंग? यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सेम हेवी मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो टू बिड सिस्टम को हम क्यों अडॉप्ट नहीं करेंगे, टू स्टेज बिडिंग को क्यों अडॉप्ट करेंगे? आपको मैं ध्यान दे देता हूं, क्योंकि अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, नाउ ए डेज यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपग्रेडेड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी कमिंग टू द मार्केट डे बाय डे, and price fluctuation is there.
तो ये प्रोक्योरिंग अथॉरिटी ये सोचते हैं कि फर्स्ट हम टेक्निकल डिटेल्स को देखेंगे, अभी हमको फाइनेंशियल बीड का जरूरत नहीं है, फर्स्ट हमको टेक्निकल डिटेल्स चाहिए। टेक्निकल डिटेल्स, उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, उसका क्वालिटी है, उसको फर्स्ट एनालाइज किया जाएगा। फिर हम जो बिडर्स एलिजिबल हो जाएंगे, जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा, उनसे फाइनेंशियल बीड बा उनसे जो आइटम्स है उसका प्राइस हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो ये मेन कारण है। By the it is not feasible to formulate detailed specifications or identify specific characteristics for the subject matter of procurement without receiving inputs regarding its technical aspects from bidders. तो subject matter of procurement without receiving inputs, क्योंकि वो हमको पहले टेक्निकल डिटेल्स बहुत जरूरी है, देखना चाहिए। फर्स्ट हम टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स का स्पेसिफिकेशन, उसका क्वालिटी चेक करेंगे। तो हमको अभी आइटम्स का प्राइस नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट टेक्निकल डिटेल्स को एवेलुएट करना है। तो फर्स्ट स्टेज में ओनली टेक्निकल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा, राइट। सेकेंड वन, द कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट इज सब्जेक्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और मार्केट फ्लक्चुएशंस। सो डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, डे बाय डे technical changes are there and prices are also frequently intermittently fluctuate one। ये भी एक वजह है कि अभी हम क्यों फाइनेंशियल बीड को इनवाइट करेंगे, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी ओनली टेक्निकल डिटेल्स हम एनालाइज करेंगे, फिर जो एलिजिबल बिडर्स होंगे, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, जो टेक्निकल बीड्स में जो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, उनको फिर उनका फाइनेंशियल बीड्स को इनवाइट किया जाएगा। तो सभी से क्यों फाइनेंशियल बीड्स लेंगे, तो ये मेन बेसिकली पर्पज है। प्रोसीज्योर को चलेंगे। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिडिंग प्रोसेस द मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट शैल इनवाइट बिड्स थ्रू एडवर्टाइज, ये याद रखना है, एडवर्टाइज्ड टेंडर कंटेनिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट। जो टेक्निकल बीड्स को इनवाइट किया जाएगा ना, वो एडवर्टाइज्ड टेंडर, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम पोर्टल और कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का खुद का वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा कि 2 स्टेज बिडिंग में बिड इनवाइट किया जा रहा है। फर्स्ट आप आपका टेक्निकल बिड्स डालिए, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट विदाउट ए बिड प्राइस, विदाउट ए बिड प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, क्योंकि जो टेक्निकल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा ना एडवर्टाइज टेंडर के द्वारा, राइट, और इसमें ओनली टेक्निकल डिटेल्स को देना है और जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस है, मगर बीड प्राइस नहीं देना है, क्योंकि बीड प्राइस किस में आ जाता है, वो बेसिकली फाइनेंशियल बीड में आता है। तो अभी हमको फाइनेंशियल बीड नहीं चाहिए, अभी हमको आइटम्स का प्राइस नहीं चाहिए, अभी हमको डिटेल्स चाहिए, टेक्निकल डिटेल्स चाहिए आइटम्स का, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो एडवर्टाइज्ड टेंडर के माध्यम से बीड को इनवाइट किया जाएगा 2 स्टेज बिडिंग को। तो 2 स्टेज बिडिंग में फर्स्ट जो टेक्निकल बिड्स को इनवाइट करेंगे एडवर्टाइज टेंडर के द्वारा। नेक्स्ट, ऑल फर्स्ट स्टेज बिड्स व्हिच आर अदरवाइज एलिजिबल शैल बी इवैल्यूएटेड थ्रू एप्रोप्रिएट कमिटी, shall be evaluated through appropriate committee constituted by the Ministry or Department, again technical evaluation committee constituted by the Department or Ministry। तो सभी का जो भी टेक्निकल बीड्स, जो भी बीडर्स, चाहे वो एलिजिबल होंगे कि नहीं, जो भी बीडर्स टेक्निकल बीड्स सबमिट किए हैं, सबका बीड्स को, टेक्निकल बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा। कौन करेगा, टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी। Technical bids of all the bidders should be evaluated by the technical evaluation committee। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस होता है, एक बीड कॉन्फ्रेंस। द कमिटी में होल्ड डिस्कशंस विद द बिडर्स and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions। सपोज बीड कॉन्फ्रेंस होता है, इसको हम बोलते हैं बीड
बीड कॉन्फ्रेंस, राइट। ये बीड कॉन्फ्रेंस में सभी बीडर्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उनके साथ जो है टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी उनके साथ डिस्कस करेगा सब कुछ उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, मगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ऐसा कुछ ऐड होगा, कुछ क्लॉज ऐड होगा, कुछ क्लॉज को डिलीट कर दिया जाएगा, मगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ओनली आफ्टर डिस्कशन सम न्यू टाइप ऑफ क्लॉज कैन बी एडेड और सम क्लॉज कैन बी डिलीटेड। तो ये भी तो इसको बीड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो द कमिटी में होल्ड डिस्कशंस विद द बीडर्स and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions। इसको हम क्या बोल दिया, बीड कॉन्फ्रेंस। ये बीड कॉन्फ्रेंस क्यों होगा, यहां पर देखिए, रिवाइजिंग द रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं अभी बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में चेंजेस नहीं होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ डिलीट होगा। द प्रोक्यूरिंग एंटिटी शैल नॉट मॉडिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द प्रोक्यूरिंग एंटिटी शैल नॉट मॉडिफाई द फंडामेंटल नेचर ऑफ द प्रोक्यूरमेंट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब जो डिस्कशन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, सभी बीडर्स जो भी टेक्निकल बीड्स जमा किए हैं सबके साथ डिस्कशन होगा। इन रिवाइजिंग द रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट, द प्रोक्यूरिंग एंटिटी शैल नॉट मॉडिफाई द फंडामेंटल नेचर ऑफ द प्रोक्यूरमेंट इटसेल्फ। तो जो फंडामेंटल नेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। and may add, amend or omit any specification of the subject matter of procurement or criterion for evaluation। only कुछ amendment होगा, कुछ add होगा, कुछ clause add होगा, कुछ delete होगा, कुछ terms and condition में changes होगा, तो वो डिस्कशन करने के बाद उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वो टेक्निकल जो बीडर्स है वो टेक्निकल बीड्स दे देंगे, टेक्निकल बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल डिटेल्स को एवेलुएट किया जाएगा। जो भी बीडर्स टेक्निकल डिटेल्स डाले हैं सबका टेक्निकल डिटेल्स को एवेलुएट किया जाएगा। कौन करेगा, टेक्निकल एवेलुएशन कमेटी करेगा। जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा वो सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। तो जब फर्स्ट स्टेज में जो एलिजिबल बीडर्स है, एलिजिबल मींस जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा टेक्निकल एवेलुएशन कमेटी के साथ डिस्कशन करने के लिए। याद रखना है, और एक बार बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला वो एलिजिबल बिडर्स हो गए सेकंड स्टेज के लिए। उनके साथ टेक्निकल एवेलुएशन कमेटी डिस्कशन करेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में रिवाइज होगा, कुछ क्लॉज ऐड होगा, कुछ डिलीट होगा, कुछ मॉडिफाई होगा, कुछ अमेंडमेंट होगा, मगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा। जो प्रोक्योरमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये हो गया, कुछ ऐड और अमेंडमेंट और कुछ डिलीट हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस। जो नेक्स्ट बिट ई देखिए, इन द सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में जो बिडर्स एलिजिबल हो गए, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला, वो सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो गए। In the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders. The procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage we are not rejected. तो अभी डिस्कशन तो हो चुका है, टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हो चुका है, नहीं कि क्योंकि फर्स्ट स्टेज में एलिजिबल बिडर के साथ डिस्कशन हुआ, टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस हुआ, राइट। उसके बाद the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage we are not rejected to present final bid with bid prices in response to a revised set of terms and conditions of the procurement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड स्टेज में उनको बोल दिया जाएगा कि जो रिवाइज्ड सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप अभी बिडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए, और उसमें फाइनेंशियल बिड भी रहेगा। ओके, टेक्निकल, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हुआ, तो चेंजेस होने के बाद फिर टेक्निकल जो एलिजिबल बिडर्स है सेकंड स्टेज में, उनको बोल दिया जाएगा कि आप बोथ टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों सबमिट कीजिए। टेक्निकल बिड क्यों फिर सबमिट करेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हुआ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफाई हुआ, तो टेक्निकल बिड सबमिट करना है। और सेकंड स्टेज में उनको बोल दिया जाएगा कि फाइनेंशियल बिड, जो आइटम्स टेक्निकल बिड में है, जो आइटम्स उसका प्राइसेस
फाइनेंशियल बीड को भी देना है। तो यहां पर सेकंड स्टेज में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एलिजिबल बीडर्स हो गए उनको बोल दिया जाएगा कि आपको टेक्निकल बीड सबमिट करना है विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल बीड, प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, दो टाइप ऑफ आइटम्स ऑलरेडी मेंशन इन द टेक्निकल बीड्स। समझ में आ गया। फिर एनी बीडर इन्वाइटेड टू बीड बट नॉट इन ए पोजिशन टू सप्लाई। कभी कभी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हो गया, फर्स्ट स्टेज में वो एलिजिबल हुआ, सेकेंड स्टेज में देखा जो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हुआ वो ये सोच रहा है एक बीडर कि मैं ये न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वो ये सोच रहा है कि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो इसके विथ जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन वो विथ ड्रॉ कर लेगा उसका बीड को, मगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए क्योंकि वो बीड सिक्योरिटी दिया है। आप जानते हो जब बीडर्स वो बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब उनको बीड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, दे मस्ट इन्फॉर्म टू द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कि ड्यू टू चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस actually we are not able to supply the goods with new terms and conditions, for this reason we want to withdraw our bids। तो इस केस में क्या होगा, उनका जो बीड सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, तो एनी बीडर इन्वाइटेड टू बीड बट नॉट इन ए पोजिशन टू सप्लाई द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द स्पेसिफिकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस may withdraw from the bidding proceedings without forfeiting any bid security with proper justification। वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस में हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे गुड्स को, हम बीड को विथड्रॉ कर देते हैं। तो इस केस में उनका जो बीड सिक्योरिटी वो फॉरफिट नहीं होगा। विदाउट जस्टिफिकेशन और विदाउट एन ऑथेंटिक रीजन इफ दे विथड्रॉ देन देयर बीड सिक्योरिटी वुड बी फॉरफिटेड। समझ में आ गया। ये हो गया 100। तो इसमें क्या होगा, तो फिर रैंक कर दिया जाएगा। ओके तो सेकेंड स्टेज में वो क्या कर दिए, जो एलिजिबल बीडर्स है वो टेक्निकल बीड्स को सबमिट किए विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, और फाइनेंशियल बीड में जो आइटम्स टेक्निकल बीड में है उसका प्राइसेस फाइनेंशियल बीड में आ गया, तो फिर उसको एवेलुएट किया जाएगा, राइट, और बीडर्स को रैंक कर दिया जाएगा, और जिसको फर्स्ट रैंक मिलेगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली दे दिया जाएगा। ये 2 स्टेज बीडिंग है, राइट। रूल 165 लेट बीड्स। लेट बीड्स क्या है, एक ओपनिंग डेट होता है, बीड ओपनिंग डेट, कि इसी डेट में बीड सबमिट होगा, और एक क्लोजिंग डेट होता है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, उसको बीड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बीड वैलिडिटी पीरियड, इट इज द टाइम विद इन बीड ओपनिंग डेट एंड बीड क्लोजिंग डेट। एक ओपनिंग डेट में कि ओपन हो गया, आप अभी बीड सबमिट कर सकते हो, और एक लास्ट डेट होता है क्लोजिंग डेट। उसके बाद कोई भी बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वही है लेट बीड्स। क्लोजिंग डेट के बाद कोई बीडर वो चाहता है कि बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि लेट हो गया। ठीक है, तो वही चीज है रूल 165 लेट बीड्स के ऊपर। क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या लेट बीड्स को कंसिडर किया जाएगा? डू यू थिंक दैट लेट बीड्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोक्यूरिंग अथॉरिटीज? नो, द लेट बीड्स कैनॉट बी एक्सेप्टेड। The bidding documents should be submitted within opening date and closing date, within stipulated period of time. After closing date, the procuring authority should not accept, should not consider the late bids. तो वही है, in the case of advertised tender inquiry और limited tender inquiry, late bids, basically जो advertised tender inquiry है कि limited tender inquiry है, वहां पर late bids को accept नहीं किया जाएगा, right? चलो नेक्स्ट को चलेंगे। रूल 166 अनदर बिडिंग प्रोसेस आ गया, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, इसको बोलते हैं एसटीई। ठीक है, इसको अब्रिविएशन फॉर्म में एसटीई आपको याद रखना है। एटीई एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, एलटीई लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तो ये एसटीई सिंगल टेंडर इंक्वायरी। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स में बी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अभी हम ये देखेंगे कि when the single tender inquiry is adopted, when the single tender inquiry is adopted by the procuring authority to procure the goods. Single tender inquiry means, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं,
एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, एक पर्टिकुलर फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, सिंगल फार्म से, सिंगल मैन्युफैक्चरर से। तो ये कब, क्या रीजन से, किस टाइम में एक्चुअली सिंगल मैन्युफैक्चरर से और सिंगल फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वन, इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फार्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। फर्स्ट कंडीशन, क्यों एक सिंगल फार्म, क्यों एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा? इसका मेन कारण है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को पता है कि एक सिंगल फार्म और सिंगल मैन्युफैक्चरर वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, द कंसर्न डिपार्टमेंट and ministry, they are having knowledge that the single farm or single manufacturer actually produce the goods. For this reason, okay, from the single manufacturer or from the single farm the goods can be procured. ये एक हो गया, ठीक है। सेकेंड, इमरजेंसी आ गया। सेकेंड कंडीशन, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन में क्या है ना, इमीडिएटली जो नॉलेज है, जो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को नॉलेज है कि ये इमरजेंसी टाइम है और उसके पास नॉलेज है कि एक सिंगल फार्म और मैन्युफैक्चरर एक्चुअली गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में वो इमीडिएटली वही सिंगल फार्म और सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी है। उनको टाइम नहीं है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी और एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे, कि टू बिड सिस्टम में जाएंगे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स and the reason for such decision to be recorded and approved of competent authority. और इमरजेंसी कंडीशन में, इन इमरजेंसी कंडीशन, if the procuring authority procure the goods from a single farm or single manufacturer, then it must be recorded. It must be recorded with proper justification, and also the concerned procuring authority should have taken approval of the higher authority. Higher authority का approval लेना है कि सिंगल फार्म और सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये सेकेंड चीज आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी। इसके थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ये सोचता है कि जो पर्टिकुलर फार्म, जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स को सप्लाई कर रहा है, वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लिए वो कंपैटिबल है। जिस तरीके का स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जिस तरीके का मशीन चाहिए, जिस तरीके का टूल्स चाहिए, जिस तरीके का इक्विपमेंट्स चाहिए, ओके, उस तरीके का स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक सिंगल मैन्युफैक्चरर एक्चुअली सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए वो सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म से प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल to the existing set of equipment, compatible equivalent on the advice of a competent technical expert and approved. So यहाँ पर रखना है एक competent technical expert का advice लेना है और competent authority का approval लेना है। ये एक technical expert का advice लेना है और competent authority का approval लेना है। The required item is to be purchased from a selected farm. तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ये बोल रहा है कि हमको जिस तरीके का मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स चाहिए, जो हमको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उस तरीके का स्पेयर पार्ट्स ओनली सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म के पास है, वो सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए वो टेक्निकल एक्सपर्ट का एडवाइस लेते हैं और हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेके वो सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म से गुड्स को प्रोक्योर कर लेते हैं। They think that actually what type of spare parts, basically machine tools and equipments actually required, and then only the single manufacturer or single farm can supply these type of spare parts and equipments. Right? For this reason, single manufacturer और single farm से प्रोक्योर किया जाता है। तो ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी है जो सिंगल फार्म और सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये थ्री कंडीशंस है, क्योंकि नॉलेज है। एक फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास नॉलेज है कि सिंगल फार्म और सिंगल मैन्युफैक्चरर एक्चुअली गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वही सप्लाई करेगा। सेकेंड वन, इमरजेंसी कंडीशन। थर्ड वन, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स।
जो डिपार्टमेंट को चाहिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को चाहिए, उस तरीके का स्पेयर पार्ट्स, उस तरीके का मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्चुअली एक सिंगल मैन्युफैक्चरर एक्चुअली सप्लाई कर रहा है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वो अप्रूवल ले जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं विथ प्रॉपर रीजन। और थर्ड जो पॉइंट है ट्रिपल आई में, वो टेक्निकल एक्सपर्ट का एडवाइस भी लेते हैं, राइट। तो ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। और कुछ एक सर्टिफिकेट के ऊपर देखेंगे। सिंगल टेंडर इंक्वायरी में जब एक सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, पीएससी का बहुत जरूरी है। पीएससी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया गया, रीजन्स क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल दिया है, टेक्निकल एक्सपर्ट का एडवाइस लिया गया है। एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोक्योर करने से पहले, बिफोर प्रोक्योरमेंट, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट फर्स्ट बनाना है। जो इंडेंटेड ऑफिसर है उसको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, फर्स्ट वन इंडेंटेड ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बिफोर प्रोक्योरिंग द गुड्स। उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म का नाम ये है। इट इज द नेम ऑफ द सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म, द डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री वांट टू प्रोक्योर द गुड्स, रीजन फॉर दिस रीजन, कि ड्यू टू इमरजेंसी, कि इक्विवेलेंट और कंपैटिबल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल विद द सिंगल मैन्युफैक्चरर। ओके, कि द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैविंग नॉलेज दैट द सिंगल मैन्युफैक्चरर और सिंगल फार्म एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सप्लाई द गुड्स। तो एक सर्टिफिकेट फर्स्ट उसको प्रिपेयर करना है। कौन प्रिपेयर करेगा? इंडेंटेड ऑफिसर उसको प्रिपेयर करेगा और हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेगा। इंडेंटेड ऑफिसर का साइन सील फिल रहेगा, ठीक है। तो उसमें वो सर्टिफिकेट आगे में देखेंगे, वही है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। In the following form is to be provided by the ministry or department before procuring the goods from a single source under the first and third. First था जो नॉलेज में है, बेसिकली कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का नॉलेज में है कि सिंगल फार्म गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और थर्ड क्या है? इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। थर्ड क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी, कि स्पेयर पार्ट्स ओनली सिंगल फार्म और मैन्युफैक्चरर के पास है। जिस तरीके का स्पेयर पार्ट्स, जिस तरीके का मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स एक्चुअली डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री को चाहिए, राइट। तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट फर्स्ट प्रिपेयर करना है बिफोर प्रोक्योरिंग द गुड्स। अच्छा, सर्टिफिकेट में क्या होगा देख लीजिए, ये है सर्टिफिकेट, यहां पर मैं मेंशन कर दिया। सर्टिफिकेट देखिए, द इंडेंटेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है। नेक्स्ट वन, नो अदर मेक और मॉडल इज एक्सेप्टेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस देना है, कि एनी अदर मॉडल और इट मींस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसी कारण की वजह से। और उसका जो कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस विंग, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो फाइनेंस विंग ऑटोनोमस बॉडीज में जो हेड ऑफ द फाइनेंस है उसका परमिशन चाहिए, और डायरेक्ट डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर का भी परमिशन चाहिए। और फोर्थ वन, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जो इंडेंटिंग ऑफिसर है वो यहां पर सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन ऑफ द इंडेंटिंग ऑफिसर, डेट, ये सब आ जाएगा यहां पर। तो आपको याद रखना है, ये जो सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेगा द इंडेंटेड ऑफिसर एक्चुअली इसको प्रिपेयर करेगा, राइट, ठीक है। देन ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर होने के बाद यहां पर क्लियर हो गया कि अप्रूव्ड अथॉरिटी उसको परमिशन दे चुका है, और जो फाइनेंस विंग है वहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर, और यहां पर ऑटोनोमस बॉडीज में कौन है ना, हेड ऑफ द फाइनेंस, उनका परमिशन लिया गया है। तो इस सिंगल सोर्स से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ये जो बिडिंग प्रोसेस है, रूल 167, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये जो रिवर्स ऑक्शन के ऊपर मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। पहले क्या था, सिंगल सेलर था जो ट्रेडिशनल टाइम में, जो नॉर्मल ऑक्शन था। बेसिकली मैं थोड़ा नॉर्मल ऑक्शन के ऊपर आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्स ऑक्शन क्या है। फर्स्ट में बता रहा हूं, ये ई ऑक्शन है। रिवर्स ऑक्शन मींस ई ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन नहीं था, थ्रू ऑनलाइन एक्चुअली, थ्रू ऑनलाइन की थ्रू सॉफ्टवेयर एक्चुअली बिडिंग प्रोसेस से बेसिकली बिडिंग को फाइनलाइज नहीं किया जाता था। तो जो नॉर्मल ऑक्शन में क्या था कि सिंगल सेलर था, बहुत ज्यादा बायर्स थे, सिंगल सेलर था, बहुत ज्यादा बायर्स थे। तो
only single seller was there and so many buyers were there. So there was competition among the buyers. So due to this actually price was hiked. प्राइस बढ़ जाता था. प्राइस was in upward trend. ये नॉर्मल ऑक्शन का बात रहा. आप ट्रेडिशनल टाइम में चले जाइए. ओनली सिंगल सेलर था, नंबर ऑफ बायर्स थे. वहां पर जो कंपटीशन होता था, बायर्स के बीच में कंपटीशन होता था. इसके वजह से गुड का प्राइस हाइक हो जाता था, बढ़ जाता था. मगर अभी जो ई ऑक्शन इसको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन में ई ऑक्शन, जो ऑनलाइन बोली होता है, ऑनलाइन बीडिंग इसको कहा जाता है. ई ऑक्शन में क्या है, उल्टा है. ई ऑक्शन में क्या है, सिंगल बायर है. सिंगल बायर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है, तो सिंगल बायर है. सो मेनी सेलर्स आर देयर. ऑनलाइन में सो मेनी सेलर्स आर देयर. दे वांट टू सेल द कमोडिटी. तो यहां पर उल्टा है, तो इसीलिए उसको रिवर्स कहा जाता है. तो अभी जो डायनामिक डेज में सिंगल बायर है, नंबर ऑफ सेलर्स है. तो इसके वजह से क्या है, जब नंबर ऑफ सेलर्स हो गया ना, तो इसके वजह से क्या है, प्राइस डाउनवर्ड, प्राइस का जो मोशन होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. प्राइस कम हो रहा है. यही है रिवर्स ऑक्शन. ट्रेडिशनल टाइम में नॉर्मल ऑक्शन, अभी ई ऑक्शन. नॉर्मल ऑक्शन में सिंगल सेलर, नंबर ऑफ बायर्स, तो प्राइस बढ़ता था. मगर जो ये रिवर्स ऑक्शन इसलिए कहा गया, अभी डायनामिक डेज में सिंगल बायर है, नंबर ऑफ सेलर्स, तो इसी के वजह से क्या है, प्राइस डाउन हो रहा है. तो इसको हम ई ऑक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ई ऑक्शन भी बोलेंगे. राइट. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको भी हम ई ऑक्शन बोलेंगे. ई ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन भी बोलेंगे. राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मीन्स an online real time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful bid. एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑनलाइन में एक पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर बनाया गया है. ऑलरेडी द सॉफ्टवेयर इज मेड, ओके, टू इट मीन्स प्रोक्योरिंग द गुड्स थ्रू ई ऑक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन. अभी मैं बताया रिवर्स बताया, क्लैरिफाई किया. तो एक ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट द सक्सेसफुल बीड. यहां पर क्या होगा, थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, बीडर्स जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे, डिटेल्स वो बोलेंगे उनका गुड्स के बारे में, और उनका प्राइस क्या है, उनका स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्वालिटी क्या है, वो प्रेजेंटेशन देंगे थ्रू ऑनलाइन. फिजिकली नहीं, थ्रू ऑनलाइन, चाहे बीडर हो और बीडर का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो. देन फाइनली जिसका लिस्ट प्राइस होगा, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी सब अच्छा होगा, और जिसका लिस्ट प्राइस होगा, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है. ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर, इस तरीके से सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम करता है. यहां पर एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऑलरेडी मेड. ओके, तो इसको रियल टाइम ऑनलाइन परचेज कहा जाता है. ठीक है. तो इस केस में क्या है, बीडर्स प्रेजेंटेशन देंगे थ्रू ऑनलाइन. ठीक है. और फिर उसको ऑटोमेटिकली फाइनली जिसका लिस्ट प्राइस होगा, जिसका स्पेसिफिकेशन अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली उसको बीड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. तो इसको हम ऑनलाइन बीडिंग, ई ऑक्शन, डिफरेंट नाम से बोलते हैं. चलो आगे में देखेंगे. प्रोक्योरिंग एंटिटी में चूज टू प्रोक्योर ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मेथड इफ इट इज फिजिबल फॉर द. अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आता है, ये जो पार्ट है वही है, क्यों हम ई ऑक्शन को चले गए. For what reason the concerned department or ministry they want to adopt e-auction, electronic reverse auction to procure the goods? उसका तो कुछ कारण है ना. Some it means reason is there. तो फर्स्ट रीजन क्या है, इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्योरमेंट. पूरा डिटेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्योरमेंट, वो पूरा आप वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, पूरा डिटेल्स आ जाएगा. ठीक है, पूरा डिटेल्स आ जाएगा. एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इसको ई प्रोक्योरमेंट में एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा. ई प्रोक्योरमेंट जो बेसिकली जो CPP है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम पोर्टल, और खुद का वेबसाइट में वो पब्लिश हो जाएगा कि रिवर्स ऑक्शन टूल से, कि ई ऑक्शन से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा. तो उसका एक सॉफ्टवेयर है, पूरा एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा, वहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है. उसको आप ओपन करेंगे, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि पर्टिकुलर इसी डेट एंड टाइम में आपका बीड को ओपन किया जाएगा, और आप चाहे आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रेजेंट रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन वो देगा, वो पूरा टाइम दे देगा, डेट एंड टाइम भी दे देगा.
जब बीड ओपनिंग होगा आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, पूरा फॉर्म को फिलअप करोगे, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस मांगा है वो बीडर्स उसको फिलअप करेगा, राइट। फिर उसमें डेट एंड टाइम स्पेसिफिक दिया है कि इसी डेट एंड टाइम में बीड ओपन होगा थ्रू ऑनलाइन, तो आपको इट मींस थ्रू ऑनलाइन आपको प्रेजेंटेशन देना है। ओके, एवरीथिंग एक्चुअली कैप्चर बाय द सॉफ्टवेयर। तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद जो सुइटेबल बिडर है उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा और उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। पूरा उसमें वो सॉफ्टवेयर में प्राइस शेड्यूल भी है, जो आइटम्स का क्या क्या प्राइस है वो पूरा सब डिटेल्स है। सेकेंड वन, एक कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अभी ये जो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ई ऑक्शन को अभी ज्यादातर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज दे अडॉप्ट ई ऑक्शन टू प्रोक्योर द गुड्स। There is a competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction so that effective competition is ensured. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जो रिवर्स जो ऑक्शन टूल है, ई ऑक्शन है, ये क्यों अडॉप्ट किया जाता है? क्योंकि ज्यादातर जो कंपटीशन बहुत स्टीप है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। मैं वही बताया ना, सो मेनी सेलर्स सिंगल बायर सो मेनी सेलर्स। तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है, मगर नॉर्मल ऑक्शन में क्या था, ट्रेडिशनल टाइम में बायर्स के बीच में कंपटीशन होता था, मगर अभी क्या है, ई ऑक्शन में सेलर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए क्या है, प्राइस डाउन हो रहा है। तो इसको इसीलिए रिवर्स बोलते हैं। मगर ट्रेडिशनल टाइम में बायर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा था कि हम खरीदेंगे, मगर सिंगल सेलर था तो इसलिए प्राइस बढ़ रहा था, मगर ई ऑक्शन में प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में है। So there is competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction so that effective competition is ensued. समझ में आया? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। The criteria is to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms. ये दो चीज भी बहुत है। जो क्राइटेरिया भी है, इतना क्वांटिटी का गुड हमको चाहिए और ये प्राइस रीजनेबल प्राइस मॉनेटरी टर्म्स में जो जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिफिएबल आइटम्स है ना, उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि इतना वर्थ ऑफ गुड्स का वैल्यू जो है इतना होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा एवरीथिंग। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे देगा बिडर्स को प्रेजेंटेशन के बाद, और टोटली उनका जो बीड्स को एवेलुएट करने के बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उनको फाइनली वो एक पर्टिकुलर बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, और वहां पर भी मेंशन कर देगा कि क्वांटिटी प्राइस को मल्टीप्लाई करके पूरा इतना वर्थ ऑफ गुड्स इतना आ रहा है और ये सुइटेबल है कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लिए। प्रोसीजर को देखेंगे। द प्रोक्यूरिंग एंटिटी शैल सोलिसिट बिड्स थ्रू एन इन्वाइटेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये पब्लिश में जो बताया था, ये पब्लिश होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन जब के द्वारा बीड को इन्वाइट किया जाएगा वो पब्लिश होगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ओके, जो मैं एक वेबसाइट बोला था www.eprocure.gov.in, वो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम पोर्टल और खुद का वेबसाइट जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का खुद का वेबसाइट में ये पब्लिश होगा, ठीक है, कि ई ऑक्शन के द्वारा गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा और पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर रहेगा। ओके, तो आप फर्स्ट ओपन करेंगे, डिटेल्स फिलअप करेंगे और उसमें भी आपको टाइम दे दिया जाएगा, एक रियल टाइम पर्टिकुलर टाइम डेट दे दिया जाएगा। आप उसी डेट में ऑनलाइन में आपका प्रेजेंटेशंस देंगे। ओके, आप डिटेल्स बताएंगे। ओके, फिर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना, डिटेक्ट कर लेगा कि किसका स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी और जो प्राइस रीजनेबल है और वो एक्चुअली सुइटेबल है कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को, ऑटोमेटिकली उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, द इन्वाइटेशन shall in addition in the information as specified in e-procurement include details relating to access। कैसे? तो ई जब पब्लिश होगा ना प्रोक्योरमेंट, जो ई प्रोक्योरमेंट में जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम पोर्टल और खुद का वेबसाइट में, उसमें क्लियरली मेंशन होगा आप कैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं बताया था आप कैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, कौन सा साइट में जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना है ऑक्शन के लिए, और कब उसको ओपनिंग होगा, क्लोजिंग ऑफ द ऑक्शन, ये पूरा डिटेल्स और कुछ कंडीशंस, ये पूरा डिटेल्स दिया है। तो जो भी होगा ऑनलाइन के द्वारा होगा, प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन के द्वारा होगा। तो डिटेल्स आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा।
कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वेबसाइट को जाना है, किस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके, क्या ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, कब आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, तो डिटेल्स दे दिया जाएगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर। तो आज का जो वीडियो था मैं अभी बता दिया, 2 बिड सिस्टम, 2 स्टेज बिडिंग, लेट बिड्स के ऊपर बताया और सिंगल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर बताया और ई ऑक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के बारे में अच्छे से बताया। तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट रूल 168 से होगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, so please go through the video till the end. It is very interesting one. You can get so many informations. It would be useful for you. Like my video, share my video, comment my video, so that in subsequent time I will bring some nice videos for you. And thank you and namaskar to all of you.